Congratulations, you've got the job. थैंक यू वेरी मच। And as discussed, your CTC is 12 lakhs. क्या बात कर रहे हो, महीने का 1 लाख मिलेगा? नहीं, पूरे 50,000. हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये क्या मुझे बताएगा कि मेरी सैलरी कितनी आ रही है, महीने कितने आ रही है, मुझे ऑलरेडी पता है, बैंक स्टेटमेंट से देख सकता हूँ। यकीन मानिए ये वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आप पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं समझ पाएंगे। एंड ये एपिसोड से हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट 2 विल बी अबाउट बजटिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपने एक्सपेंसेस पे कंप्लीट कंट्रोल कैसे रख सकते हैं। कितना पैसा आया, पार्ट 1, कितना पैसा जा रहा है, part 2. Part 3 में I'll end up explaining about a tool to you for which you need to know how to use the tool for this part 1 series and part 2 series. अगर आप अपने फाइनेंस पे से पूरा कंट्रोल चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। 5-6 मिनट लगेंगे, 1.5x की स्पीड पे देख लीजिए। बड़ा सिंपल सा छोटा सा वीडियो है, बड़ा मजा आएगा देखने में, यकीन मानिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बिलो, click on the link, make a copy of that tool and use it as you want. Go to G2 cell number and enter whatever your total CTC is. It might be 5 lakh, it might be 10 lakh, it might be 20, whatever it is, simply put that number in that cell. And then you will notice that almost all the columns are filled in by itself. ये टूल ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो अभी हम अज्यूम करते हैं दैट योर CTC इज 10 लाख रुपीज। तो आपका मंथली कॉस्ट टू कंपनी टोटल कितना है? अप्रोक्सीमेटली 83,300। आउट ऑफ दिस बेसिक सैलरी वुड बी टिपिकली 50% ऑफ द CTC, which comes to around 41,700. Now coming to HRA, if you are living in a metro, it will be 50% of your basic component. If you are living in a non-metro, it will be 40% of your basic component. In this case, हमने ये assume किया है कि आप non-metro में रह रहे हैं, तो यहाँ पे 40% of basic डाला हुआ है। Then next is EPF. अब जो EPF है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट वो जिसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, विच इज 12% ऑफ योर बेसिक। सेकेंड पार्ट वो जिसमें कंपनी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही है, विच अगेन इज इक्वलेंट टू योर कंट्रीब्यूशन, विच इज 12% ऑफ बेसिक। इन दिस केस, फॉर दिस एग्जाम्पल, द टोटल कम्स टू 5,000 फ्रॉम कंपनी साइड, 5,000 फ्रॉम योर ओन साइड, विच इज 10,000 रुपीज। नाउ coming to special allowance is nothing but rest all the particulars being added and reduced from the total CTC. Whatever remaining sum you get, the company pays you as special allowance. कुछ कंपनीज में ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, but most of the companies might follow this structure. Accordingly, you can also modify this Excel to suit your needs. Now, ये तो हो गए normal components, regular components, basic, HRA. Now we come to part 2, where companies give you a choice to save taxes by opting for some allowances. तो इसमें पहला allowance क्या है? Transport allowance. If you go to G3 cell number, it asks you कि आपकी कार की cubic capacity कितनी है. The reason for that is, if your car is having an engine of more than 1600 cc, तब आपको जो allowance मिलेगा, that will be 2,400 rupees per month. But अगर आपके कार के इंजन की cubic capacity is 1600 cc or less, then this allowance will only be 1,800 rupees per month. In this case, we have assumed it is less than 1600 cc and hence यहाँ पे आप 1,800 नंबर देख पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जरूरी नहीं है that you have your own car. You can also have your own two-wheeler, in which case this number allowance का amount will reduce to 900 rupees per month. Coming to next point, driver allowance. This you can only claim if you have a car, and this is limited at 900 rupees per month maximum. Next point, food coupon. This is an allowable tax deductible expense as per law. यहाँ पे भी कंपनीज आपको टिपिकली 2,200 पर मंथ की अपर लिमिट देती हैं। वी स्ट्रांगली सजेस्ट दैट आप इस बेनिफिट को जरूर अवेल करिए अगर आपकी कंपनी से प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म इज एक्सेप्टिंग फूड कूपन। अगर आप बिग बास्केट यूज करते हैं, अगर आप जोमैटो यूज करते हैं, स्विगी यूज करते हैं, और फॉर दैट रीजन एनी ऐप फॉर फूड डिलीवरी, और यू विजिट एनी हाइपर मार्केट ऑल्सो, राइट, फ्रॉम वेयर यू बाई ग्रोसरीज, आप इस फूड कूपन को आराम से यूज कर सकते हैं। Almost all companies now offer them in digital form through different food wallets. चाहे वो Sodexo से हो, चाहे वो Paytm food wallet हो, कुछ भी. You should definitely opt for this. Coming to the next part, telephone expenses. इस पे कोई specific upper limit नहीं है, but
it has to be reasonable. You cannot simply go and claim 10,000 rupees per month as telephone expenses. So in this case, we assume that 1,000 rupees per month is something which is very reasonable, and you can claim this and it will be reduced from your taxable salary part. And next is NPS contribution. NPS contribution can be done up to a maximum of 10% of your basic. इस केस में 41,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आपकी बेसिक सैलरी है. सो अपर लिमिट यहाँ पे हमने मान लिया है फॉर सिंप्लिसिटी से 4,000 रुपीज. ये 4,000 रुपीज आप अपने पास से जमा नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली आप कर रहे हैं अपने पास से, बट टेक्निकली ये 4,000 रुपीज एम्प्लॉयर डायरेक्टली आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करेगा. And because of that, your taxable salary will reduce by 48,000 rupees, that is 4,000 into 12 at the end of the year. So you will end up saving a lot of tax. इस 48,000 के अलावा भी, apart from this, you can also invest your own 50,000 rupees in NPS account. So total, आप 98,000 rupees भी डाल सकते हैं in your NPS account to get tax exemption. And mind you, 1.5 लाख की जो लिमिट है एटीसी में, ये उसके ओवर एंड अबव है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिफ्ट वाउचर. यू कैन क्लेम अ गिफ्ट वाउचर फ्रॉम योर कंपनी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 4,999 रुपीज विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशन. तो ये 5,000 रुपए भी आपके टैक्सेबल सैलरी से रिड्यूस कर दिए जाएंगे. एंड ऊपर सेल G2, 3 एंड 4 ये भी आपको खुद से एंटर करने पड़ेंगे सो दैट ये सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट हो जाए. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको कोई नया ऑफर लेटर मिले, प्लीज हैव अ लुक एट द कंपोनेंट्स वेरी केयरफुली ऑफ द सीटीसी. दिस हैज हैपेंड विथ मी. मेरे को जो ऑफर लेटर मिला था उसमें ग्रेचुटी को भी मेरे सीटीसी से ही डिडक्ट किया जा रहा था, विच इज रॉन्ग. अगर मैं 5 साल के पहले उस कंपनी को छोड़ देता तो वो जो पोर्शन डिडक्ट किया गया है मेरे सीटीसी से, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता. सो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा. इस टूल में अगर आप ध्यान दें तो अपार्ट फ्रॉम टेलिंग यू कि नेट टेक होम कितना है, दिस विल ऑल्सो टेल यू कि आपका कैश टेक होम कितना है. नाउ कैश टेक होम विदाउट द फ्रिंज बेनिफिट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह वगैरह, एंड विथ फ्रिंज बेनिफिट कितना होगा. अब आप अगर नीचे रो नंबर 28 देखेंगे तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि 62,000 के आसपास आपका विदाउट ये सारे बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट है. बट अगर आप इसको जोड़ देंगे तो दिस अमाउंट इंक्रीजेस टू 68,000. मतलब आप पर मंथ 6,000 रुपीज पे टैक्स बचा रहे हैं, विच इन टोटल वुड बी अराउंड 72,000 रुपीज पर ईयर. ह्यूज टैक्स सेविंग. नाउ मूविंग ऑन, अगर आप इस टूल को नीचे देखें तो इसमें इनकम टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाता है एंड इट गिव्स यू एन एग्जैक्ट फिगर कि आपको इन हैंड कितना आएगा. और सैलरी जानने के बाद आइए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं. क्लिक करिए, अपने बजट को समझिए, अपने एक्सपेंसेस को समझिए, पैसे बचाइए, पैसे वाला बन जाए. गुड नाइट. वीडियो का एंड आ गया. दिस इज समर टंडन साइनिंग ऑफ. अंटिल वी मीट अगेन, हैप्पी वेंटिंग.